Good morning, class 11th. We will study about shapes of atomic orbitals, that is the probability curves. Now, if you remember your Schrödinger's wave equation, you have discussed the quantum mechanical picture of the atom, and by solving that Schrödinger's wave equation, you got different wave functions. Okay? So in that we got one wave function that was orbital wave function. Now this orbital wave function for an electron in an mathematical function such that it provide you the physical senses, and we always plots graph, and we see these graphs are not coming in a board examination because in class 12 these things are not asked, but then too I'll show you different graphs that is been there. Now you see these graphs are there, that is being plotted between the wave function and orbital wave function of an electron against the distance from the nucleus, and you are seeing different values of nanometers is being there. Okay? Different values of graphs is being obtained and different is being plotted. So you can see that the first graph was plotted between the wave function, orbital wave function of an electron in an atom against the distance from the nucleus r, right? So this way you were getting different values. Okay? And over here if you see this part also, just see the graph in a different manner. This way also you are seeing the graph values are very different. Okay? Now let's focus on this plot also. The wave function आपने लिए रखा, उसको स्क्वायर कर रखा है. ठीक है? And against r, again it is the value for your distance from the nucleus. You see that graph how it is being formed. Okay? So there are different values. Now what happened that now this square value of wave function, orbital wave function, it is an important value because this gives you point of probability density of electron at that point. जहाँ पर भी आपको ये इस ग्राफ में आप प्लॉटिंग करते हो तो आप हमेशा इस जगह पे you can find where the electrons are maximum. ठीक है? So you can see that we are making this graphs and making the values, और एक plotting जैसे आप अलग अलग orbitals के लिए भी आप orbitals I mentioned you in this video only. So there are different orbitals are there. For s में अलग है, p में अलग है ना. So this way from this graph, if you see this particular graph, this second point graph, you'll see that the different values will show. ये देखो यहाँ पे अलग अलग और अच्छी तरह से आपको ग्राफ शो कर रहा है, और ये ग्राफ जो जनरेट कराया गया है, ये दोनों ग्राफिक्स को अगर आप देखते हो तो ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ अलग है, ये ऑर्बिटल्स भी अलग है. 1s के लिए है, ये 2s के लिए, या 1s के लिए या 2s के लिए. तो 1s की ऑर्बिटल अगर है तो कैसा ग्राफ आ रहा है, 2s ऑर्बिटल है तो कैसा ग्राफ आ रहा है. अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट व्हेन वी डिस्कस द शेप देन यू विल गेट एन क्लियर पॉइंट दैट हाउ दीज आर देयर. So you can see how the values are coming in the 1s and how it is coming in the 2s. ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि यू सी द ग्राफ इट इज़ क्लियर, ऊपर वैल्यूज़ बहुत हाई हैं और धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है. ठीक है? और ये ग्राफ जो है चेंज होता जा रहा है. यहाँ पे भी देखो पहले हाई है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है. तो दीज आर द रीजन्स वेर यू कैन हैव अ लुक दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर इट इज़ मोर एंड वेयर इट इज़ लेस. तो जितना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटीज़ भी जो है वो दूर होती रहेगी. ठीक है? डिक्रीज़ होता जाएगा ग्राफ. तो दिस वे यू कैन सी द पॉइंट्स, और यहाँ पे हम बाद में भी देखेंगे नोड्स हैं और नोडल पॉइंट्स आते हैं, वो भी हम सिंपली फोकस करेंगे व्हेन वी फोकस ऑन द शेप्स एंड ऑल दैट. ठीक है? एंड अगेन आई एम टेलिंग यू जनरल आइडिया विच आई हैव टोल्ड यू, दिस नेवर कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट शेप्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. लेट्स फोकस ऑन दैट. बेसिकली व्हाट हैपेंड ना, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ वी कम अक्रॉस टू डिफरेंट अप्रोचेस. एक अप्रोच आता है जो अपने ग्राफ पीछे देखे, एक होता है क्लाउड चार्ट, क्लाउड डायग्राम. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस विल नॉट कम, बट स्टिल you should have an idea of your syllabus. बाउंड्री सरफेस डायग्राम. ठीक है? अब ये दोनों क्या होते हैं, चार्ज क्लाउड डायग्राम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एस होता है. ठीक है? एस ऑर्बिटल है, आपने 1s देखा था, वो सर्कल से रिलेट करता है. ठीक है? किसी भी एटम जगह सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस देखे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, डॉटेड लाइन से नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स बना लेते हैं. हम लोग एक्चुअली जो हम लोग ने स्ट्रक्चर हमेशा एटम का ऐसा बनाया है, ये इमेजिनेटरी है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहे हैं. ये सब गलत है.
पुराना कॉन्सेप्ट है, बट नाउ यू सी जो सेंट्रली प्लेस्ड है उसके चारों तरफ एक क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली क्लाउड्स जो है वो जनरेट होता है। एंड वन मोर थिंग, द यूनिफॉर्मिटी ये नहीं होती कि एक हर जगह हर तरफ इक्वल ही हो, वो अनइक्वल क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम 2s की कंडीशन देखें तो 2s में 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं। इसमें क्या है कि आपका ठीक है, अब जिस 2s में है तो ये बेसिकली ये पोर्शन होता है वो क्या है, आपका नोडल सरफेस कहलाता है। Plus, before going to this part, let's focus on this way also. I have already mentioned you, but maybe possibly you must be confusing with the shells, subshells, orbitals and spin, है ना। A point is that you know that the shells जो हम पढ़ते थे ना, K, L, M, N, that was 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट करते थे, जो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता था। वो शेल, उस शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल होता है। एंड दिस पर्टिकुलर सबशेल कंटेन्स दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सबशेल हमने पीछे भी वीडियोस पढ़ा था, SPDF कंडीशन है। अब सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट द S ऑर्बिटल्स, तो S सबशेल में, ठीक है, आपका कौन सा ऑर्बिटल आएगा, S ऑर्बिटल आएगा। अब इसको हम बेसिकली वैसे देखें तो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे हमने अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर्म में देखें तो हमने क्या करा है, इसको एक स्पेरिकल फॉर्म पे जो है वो रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। और स्पेरिकली उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर हम वैसे अपने जब चलेंगे आगे देन यू विल सी दैट वी आर मेकिंग अ बॉक्स लाइक दिस एंड दिस वे वी आर एक्सप्लेनिंग इट। आई एम शोइंग यू फ्यू डायग्राम्स फ्रॉम द बुक ऑल्सो, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ 1s ऑर्बिटल है या 2s ऑर्बिटल है, 1s अलोन है, ठीक है। और 2s में तुम देखोगे कि आपको नोडल सरफेस भी पाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होती है, ज़्यादा जहाँ पे न्यूक्लियस होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जहाँ होता है वहाँ रिपेल करता है, जबकि ऐसा नहीं, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ पर भी आपका न्यूक्लियस होएगा वो इलेक्ट्रॉन उस तरफ ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की डिस्टेंस से व्हेन यू मूव फर्दर इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, यू आर सीइंग ओवर द नोडल सरफेस ओवर हियर इज बीन देयर, ठीक है। 1s में ये चीज़ नहीं होती है। अब ये नोडल सरफेस जो है ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ओवर हियर यू विल नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बेसिकली जितने भी s ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 1s आ रहा है, 2s आ रहा है, ये सब स्पेरिकल हैं। और हायर भी ऑर्बिटल्स पे जाएंगे आप, जैसे 1s भी है आपका, ये तो पहला ही था, ठीक है। 2s है, 4s है, 5s है, 6s है, 7s है, टोटल ये इतने ही होते हैं। और आगे आप बढ़ोगे तो भी ये क्या है, ये सब स्पेरिकल शेप्स में होते हैं। नाउ वील फोकस ऑन द शेप ऑफ द p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स बेसिकली जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है। आपने डंबल उठाया होगा, देखा होगा, तो डंबल शेप के होते हैं। मैंने ऐसे लिखा हुआ है बुक्स में, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, नो वेज, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। सो एंड दे लाइज ऑन द एक्सिस, आपकी बुक में ऐसे भी दिया रखा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, मेरा डायग्राम थोड़ा फ़र्क हो सकता है, वाई एक्सिस है ये, ठीक है। अब इसका आप प्लेन एक बना लो तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। ये इसका नोडल सरफेस है, इस तरह से हमने इसका बनाया रखे, ठीक है। अब मैंने इसीलिए तुम्हें ये लिखा है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये बेसिकली आपके 3 में फर्दर डिवाइडेड, px, py, pz, ठीक है। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं और इनकी वैल्यूज़ जो होती है, अगर तुम्हें याद हो, हम अगर n=2 यूज़ करते हैं, क्योंकि याद हो क्वांटम नंबर जब मैंने पढ़ाया था तो n=1 है, जब हम लिखते थे तो l=0 आता था, ये s के रिलेटेड करता था, s ऑर्बिटल्स के, याद आ रहा, पीछे की वीडियो देख लेना क्वांटम नंबर वाली। अब अगर n=2 हम ले रहे हैं देन यू आर गेटिंग l=1, और 1 के केस में भी क्या था, +1 था आपके पास, -1 था, 0 था ना, ये वैल्यूज़ आपकी आ रही थी। अभी पता है ये क्यों आ रही है, वाई इट इज़ कमिंग +1 -1 3 वैल्यूज़ क्यों आ रही है, क्योंकि p में आपके पास क्या है, ये 3 पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स है, px है, py, pz है। अब px क्या है, जो x एक्सिस पे लाई करेगा, py क्या है, जो y एक्सिस पे लाई करेगा, और यहाँ पे क्या है, pz क्या है, जो z एक्सिस में लाई करेगा। इसीलिए इनकी ये लेबलिंग जो है वो डिपेंड करती है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन देयर ओरिएंटेशंस एंड द डायरेक्शंस एंड दैट्स व्हाई द शेप्स आर ऑल्सो डिफरेंट। सो आई विल शो यू दिस शेप्स ऑल्सो। ये समझ में आया है +1 +2 +3 कैसे आया। अब जो px था, ये py है या pz है, मैंने आपको एक भी बताया था कि आप p +1 लिख सकते हैं, p
-1 लिख सकते हैं, P0 लिख सकते हैं। तो यानी Px को ऐसे भी लिख सकते हैं, Py इसको Pz, ये याद रखना है, लेकिन हमेशा हम यूज़ करेंगे ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर कभी आ गया। तो दिस वे, वाई, बिकॉज ऑफ द लेबलिंग्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट एंड वी विल सी दैट डम्बल शेप, समझ रहे हो ना, डम्बल शेप होता है ये, ठीक है। आई एम शोइंग द डायग्राम। नाउ यू कैन सी, देखो पी एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये आपका वाई था, ये जेड बनाया था आपने, एक्स एक्सिस बनाया था, एक्स पे लाई कर रहा है। अब ये पी वाई क्यों हुआ, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये जेड क्यों है, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। देयर आर 2 लोब्स, एक लोब ये है, एक लोब ये है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, इधर या इधर, इन्हीं में ही आप अरेंज करते हैं। जब फर्दर हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द शेप। नाउ लेट्स कम टू द डी ऑर्बिटल पार्ट. If you remember your d orbital point, you have seen that I have written n is equals to 3, principal quantum number 3 लिया था, then you were getting n minus 1, L was this thing, so what 3 minus 1 you are getting 2, याद आ रहा है ना। L की वैल्यू अगर 0 है तो S को रिप्रेजेंट करें, L की वैल्यू 1 है तो P को, L की वैल्यू 2 है तो D को, ये मैंने सिखाया है क्वांटम नंबर में। सो यू आर गेटिंग L for is equals to 2, so what you are getting -2, -1, 0, +1 and +2, these values were you were getting for magnetic quantum number. This implies है ना D के लिए। इसमें क्या होता है, D में टोटल 5 और जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स वी वर गेटिंग, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, देखो D x y, D y z, D z x, D x square minus y square, and last is dz square. Now these were the 5 d orbitals that we were getting. ये सब देखो डिपेंड करेगा क्यों ये सब नाम आ रहा है एक्स पे, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, एक्स ये वाई एक्सिस में ये लाई कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ दीज 3 ऑर्बिटल्स, दिस थिंग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये लगभग सेम शेप के होते हैं, बस एक्सिस इनका एक्सिस लाई होता है, शेप सेम होते हैं लगभग, बट एंड ऑल दे विल कंटेन्स द 4, क्योंकि भैया 2 ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस पे भी एक लाई करेगा और एक वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है कि इनके लगभग शेप्स जो हैं वो सिमिलर ही लगभग दिखते हैं, है ना, और इनमें 4 लोब्स दिखते हैं, ठीक है। अभी दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस प्लेन में क्या है। नाउ लेट्स सी द डायग्राम से, इसमें थोड़ा सा डायग्राम जो डी जेड स्क्वायर है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। लेट्स फोकस ऑन इट। वी आर सीइंग दीज डायग्राम्स, यू कैन सी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये क्वेश्चन आए हुए हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, तो प्लीज़ लर्न दीज डायग्राम्स, ठीक है। तो यू कैन मेक द डायग्राम्स एंड यू कैन लर्न देम। एंड दीज देखो 4 लोब्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोब्स यू आर गेटिंग इन एवरी केसेस, ठीक है। अब एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान देना है इसमें रिगार्डिंग डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये डी जेड स्क्वायर जो लोब है तुमने देखा है ना, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं तो सारे लाइज एक ही तरफ ये रहेंगे आपके, और इसका थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली देखो जेड एक्सिस में नहीं कि दोनों जेड एक्सिस पे हो, एक जेड एक्सिस में वो थोड़ा सा लोब गोल गोल राउंड बना लेता है, तो ये थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन में ये सिचुएटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट कम्स योर एफ ऑर्बिटल्स। देखो एफ ऑर्बिटल्स के केस में याद रखना 7 होता है, इफ़ यू रिमेंबर इट। शेप्स के केस में तुम्हें एन की वैल्यू याद होगी कि एन की वैल्यू हमने 4 यूज़ करी थी, तो एल की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, n-1 इज इक्वल्स टू 4-1 इज इक्वल्स टू 3 यू आर गेटिंग, है ना। तो एल की वैल्यू 3 आ रही थी, तो यानी वो एफ़ को रिलेट अप कर रहा था, ये याद हो रहा है। अब एफ़ में 7 होते हैं, इसमें टोटल 7 फोल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है और 7 ओरिएंटेशन होते हैं। देखो इसके डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 3 डायमेंशन मॉडल्स के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए बेसिकली वी आर नॉट मेकिंग इट ऑन द पेपर। और 3 डायमेंशन डायग्राम्स भी ज़्यादातर आपके पेपर में आप बना ही नहीं पाते हो, तो आपको जब भी आएगा तो देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम्स दैट यू आर सीइंग फ्रॉम द नेट एंड गेटिंग आउट द पिक्चर, यू कैन नॉट मेक इट ऑन द पेपर, सो नेवर राइट डाउन। तो ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया। तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो इसके कोई शेप नहीं है, 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, तो इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स आपके पास आ जाते हैं। फर्दर सब डिवाइडेड भी नहीं होता है जैसे आपके डी में है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी शेप्स जो है पूछ लिया जाता है। ज़्यादा कॉमन जो शेप होते हैं पी और डी होता है, दैट इज़ मीनार। एफ इज़ नेवर आस्क्ड। 3 लाइन क्वेश्चन होता है कि भाई इट रिक्वायर्स 3 डायमेंशन मॉडल्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट। इट्स स्ट्रक्चर्स शेप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो देर इज़ नो नीड टू। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो f orbitals are how much? 7-fold degenerated and possess 7 orientations, and possess 7 orientations in shapes. Its shapes are complex, thus they possess very complicated shapes. ठीक है, they require 3 dimensions models. So this way it's very important that you will see different shapes and please learn them, क्योंकि एवरी ईयर तो नहीं कह सकते, बट हाँ 2 और 3 years में इट कम्स. तो आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज़.